तो लाज़मी बात है, सुषमा स्वराज ने खुद 370 को लेकर इतनी जज्बाती तकरीर की थी उस वक्त, और जब उन्हें मिली इत्तला 370 को हटा दिया गया है तो फौरी उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मुबारकबाद दी कि एक बड़ा काम सरकार ने, बीजेपी ने किया है। और आगे बढ़ेंगे। 11 साल की उम्र में राह भटक कर सरहद पार पाकिस्तान पहुंची क़ुव्वत गोयाई और समाज से महरूम गीता को सुषमा स्वराज की कोशिशों की वजह से ही हिंदुस्तान लाया जा सका। गीता ने हिंदुस्तान आने के बाद सबसे पहले सुषमा स्वराज से मुलाकात की थी। सुषमा स्वराज की कोशिशों की वजह से ही गीता अपने मुल्क वापस लौट पाई। और वहीं सुषमा स्वराज के इंतकाल पर मारूफ समाजी कारकुन कैलाश सत्यार्थी का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ठीक 40 साल पुराना था जब वो हरियाणा भवन में कई बार रहा करती थी, एमएलए थी, और मैंने पहली बार जब कुछ बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया तो उनकी सहायता की ज़रूरत पड़ी और उनकी संवेदनशीलता, उनकी मानवीय करुणा ने मुझे इतना प्रभावित किया कि लगातार फिर उनसे परिचय, संपर्क, संबंध बने रहे। बड़ी बहन की तरह वो हमेशा कुछ अच्छी सलाह देती थी। मुझे याद है कि अम्बाला कैंट में जहाँ की वो थी, एक जनसभा में हम लोग थे साथ 1981 में, और मेरा छोटा बेटा जो 2.5 साल का था वो कुछ देशभक्ति का गीत गाना चाहता था और मंच तक, माइक तक नहीं पहुंच रहा था। सुषमा जी ने दूर से भाग के उसको गोद में उठाया और माइक के सामने खड़े कर न केवल उसके साथ वो गीत गाया और नारे लगवाए, बल्कि हमेशा के लिए उसको इतना स्नेह देती रही वो। मैं फिर से उनके लिए बहुत विनम्र श्रद्धा। मध्य प्रदेश से लोकसभा की सांसद चुनी गई, उस दौरान भी उनके साथ बहुत निकटता रही और सरकार में भी वो मंत्री थी, तो उस समय भी पूरे 5 वर्ष केंद्र के मंत्री के रूप में भी उनके साथ काम करने का अवसर मिला। अनेक ऐसे अवसर आते थे जब काम करने में कठिनाई अनुभव करते थे और उनसे पूछने जाते थे तो निश्चित रूप से वो तत्काल उसका समाधान देने का काम करती थी। उनका साथ, उनका सानिध्य मेरे लिए तो निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। భారతీయ జనతా పార్టీ సీనియర్ నాయకురాలు శ్రీమతి సుష్మా స్వరాజ్ గారు స్వర్గస్థులు కావడము నిజంగా ఎంతో దుఃఖదాయకమైనటువంటి విషయము. చిన్న వయసులోనే అనేకమైనటువంటి ఉన్నత పదవులు అధిరోహించి దేశ ప్రజలకు ప్రతి ఇంట్లో ఒక కుటుంబ సభ్యురాలుగా పేరు సంపాదించుకున్నటువంటి వ్యక్తి. ముఖ్యంగా వ్యక్తిగతంగా నాకు ఒక అమ్మలాగా భావించేవాడిని. తెలంగాణ ఉద్యమంలో నేను చేపట్టినటువంటి అనేక కార్యక్రమాల్లో వారు నియమాలను పక్కన పెట్టి అనేక ఉద్యమాలలో నాతో పాటు ఉండి నాకు అండగా ఉన్నారు. నేను చేపట్టినటువంటి పౌరయాత్రలో కానీ తెలంగాణలోని అన్ని జిల్లా కేంద్రాలలో సుష్మా స్వరాజ్ గారి సభలు పెట్టాలనేటువంటి లక్ష్యంతో అడిగినప్పుడు అన్ని జిల్లా కేంద్రాలలో వారు స్వయంగా పాల్గొనడం కానీ, ఇటీవల నేను పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా గెలిచిన తర్వాత వారి దగ్గరికి వెళ్తున్నప్పుడు ఆమె అనారోగ్యాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా నన్ను దగ్గర తీసుకొని కౌగలించుకొని ఆనంద బాష్పాలు కంట తడిపెట్టింది. నువ్వు నా కొడుకు, నువ్వు గెలవడం నాకు ఎంతో సంతోషం అని చెప్పి ఆమె ఆ రకంగా దగ్గర తీసుకున్నది. ఆ రకంగా సుష్మా స్వరాజ్ గారు మరి తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా పార్లమెంటులో తెలంగాణ ప్రజలకు అండగా నిలబడి, మరి ఆ రోజు తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని పోలీస్ నిర్బంధంతో అణిచివేయాలని చూసినప్పుడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థులకు అండగా, తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు అండగా సుష్మా స్వరాజ్ గారు ఆ రోజు నిలబడి పార్లమెంటులో మరి తెలంగాణ ప్రజలకు అండగా నిలబడి ధైర్యంగా నిలిపి బిల్లు పాస్ అయినప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద తీవ్రమైనటువంటి ఒత్తిడి తెచ్చి యావత్తు తెలంగాణ ప్రజల తరఫున, ప్రతిపక్షం తరఫున మాట్లాడినటువంటి ఏకైక వ్యక్తి ఆ రోజు సుష్మా స్వరాజ్ గారు. పాలక పార్టీ నుంచి ఎవరు మాట్లాడలేదు,
మిగతా పార్టీల నుంచి ఎవరు మాట్లాడలేదు. ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఆ రోజు తెలంగాణను అడ్డుకున్నప్పటికీ కూడా మరి సుష్మా స్వరాజ్ గారు మొత్తం భారతీయ జనతా పార్టీ సభ్యులందరినీ ఏకం చేసి ముక్త కంఠంతో ప్రాంతాలకు అతీతంగా బయటి రాష్ట్రాలకు చెందినటువంటి ఎంపీలు అయినప్పటికీ కూడా తెలంగాణ ప్రజలకు అండగా 120 మంది ఎంపీలను నిలబెట్టి ఆ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడడం కోసం అనుకూలంగా మాట్లాడినటువంటి ఏకైక వ్యక్తి సుష్మా స్వరాజ్ గారు. నిజంగా ఆమె చెప్పింది, నేను తెలంగాణ ప్రజలకు చిన్నమ్మను అని చెప్పి ఆ రకంగా తెలంగాణ ప్రజల యొక్క హృదయాలను తనకంటూ ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం సంపాదించుకున్నటువంటి సుష్మా స్వరాజ్ గారు మరి ఏదైతే ఈరోజు స్వర్గస్థులు కావడం ఏదైతే ఉన్నదో నిజంగా దేశానికి వ్యక్తిగతంగా నాకు తెలంగాణ ప్రజలకు తీరని లోటు. నేను తెలంగాణ ప్రజల తరఫున నా తరఫున సుష్మా స్వరాజ్ గారి మృతికి ప్రగాఢమైనటువంటి సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని, తెలంగాణ ప్రజల హృదయాలలో మీ పేరు చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా సుష్మా స్వరాజ్ గారి మృతి సందర్భంగా నేను నా యొక్క ప్రగాఢమైనటువంటి సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నాను. तो मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी सुषमा स्वराज के जाने को यकीन नहीं करते. उन्होंने कहा कि मैंने एक माँ को खोया है. और जहाँ तक तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना को बहुत ही करीब से वो जानती थी. कई सभाओं में उन्होंने खिताब किया था और तेलंगाना के हालात को उन्होंने पार्लियामेंट में भी रखा था. इसके विषय पर मैं जब बीजेपी अध्यक्ष था, जब मैं तेलंगाना जनता का साथ मिलकर जो आंदोलन किया था, मैं उस आंदोलन को सुषमा स्वराज ने बहुत बड़ा दिल से तेलंगाना का जनता का बीच में आया, मेरे को समर्थन किया. अलग अलग जिलों में अलग अलग कार्यक्रम किए तो व्यस्त रहने के बाद भी हर जिला में सुषमा स्वराज जी का तेलंगाना आंदोलन में भागीदार हुआ. जब मैं 3 बार दिल्ली में धरना किया, उस कार्यक्रम में भागीदारी थी. जब तेलंगाना का बिल पार्लियामेंट में प्रस्ताव आया था, उस प्रस्ताव में ना कांग्रेस पार्टी का कोई बोला, ना विपक्ष का कोई बोले. पूरे तेलंगाना का बिल के खिलाफ जब तेलुगुदेशम कांग्रेस पार्टी खिलाफ किए, तो जब 160 एमपीस नॉन तेलंगाना के एमपीस को एकत्रित करके तेलंगाना बिल के समर्थन में पार्लियामेंट में खड़ा किया सुषमा स्वराज जी, और उन्हें अकेला वो दिन भाषण दिया है. सिर्फ कांग्रेस पार्टी बिल लगाए होंगे, मगर कांग्रेस पार्टी में यूनिटी नहीं था. बिल लगाया सुषमा स्वराज के कारण, बिल पास हो गया सुषमा स्वराज के कारण. बिल के समर्थन में 160 लोगों को खड़ा किया सुषमा स्वराज जी ने जनता को एकत्रित करके. वैसा सुषमा स्वराज जी का जो देहांत होने के कारण सारी तेलंगाना का जनता बहुत दुखी है. मैं मेरा ओर से तेलंगाना का जनता को ओर से मैं जो सुषमा स्वराज जी का देहांत होने के कारण मैं कंडोलेंस बताना चाहता हूँ. जब तक सुषमा स्वराज जी का नाम हर तेलंगाना के व्यक्ति का दिल में रहेगा, क्योंकि सुषमा स्वराज जी का बहुत बड़ा रोल तेलंगाना राज्य बनाने में थे. व्यक्तिगत मैं पार्लियामेंट संसद चुनने के बाद मैं मेरा एमपीस को लेके गए. हेल्थ ठीक रहने के बाद भी वो मेरे से गला लगाकर मेरे को आशीर्वाद देते हुए आंखों से पानी निकला. मेरा बेटा आज एमपी जीत के आया, ऐसे सबके सामने वो आंखों से पानी निकालते हुए मेरे को गला लगाया. वो सीन मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलता हूँ. ऐसा मेरा माँ जैसा था वो सुषमा स्वराज जी. मैं आज बहुत दुखी हूँ सुषमा स्वराज जी देहांत के कारण. ममलिकती मरकज़ी वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी तेलंगाना से हैं और सिकंदराबाद के एमपी हैं, और अपनी मुलाकात को उन्होंने साझा किया. सुषमा जी के निधन से एक युग का अंत हुआ है, और मुझे उनकी वो बात याद आती है कि वो कहती थी कि हिंदी पूरे विश्व को अपना परिवार समझती है,
अंग्रेजी बोलने वाले पूरे विश्व को अपना बाजार समझते हैं, तो आज पूरे विश्व ने एक अपनी बेटी को खो दिया है। वो ऐसी हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन की नेता थी कि महिला के रूप में अगर वो सफलतम विदेश मंत्री थी, तो विपक्ष के नेता के रूप में एक क्रॉस द पार्टी लाइन सदन सेंट्रल हॉल खाली हो जाता था, पूरे लोग उनके भाषण को सुनते थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में हो, आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन के रूप में हो, मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने एक ज्वाजल्यमान नक्षत्र की तरह से राजनीति में स्थान बनाया है, वो शायद अपूर्णीय क्षति है, उस रिक्तता को कोई भर नहीं पाएगा। दादा क्या बोलेंगे, सुषमा जी आज हमारे बीच नहीं रही, काफ़ी लंबा उनका राजनीतिक जीवन रहा, बहुत सारी बातें उनकी कही आज भी याद आती हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय राजनीति का आज बहुत दुखद दिन है। इनका समतुल्य पॉलिटिशियन मिलना बहुत मुश्किल है और इनका भरपाई करना भी बहुत मुश्किल है। एक तरह तो बोलेंगे कि आज भारत का राजनीति का एक बहुत बड़ा स्तंभ का सूर्यास्त हुआ, इसको भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है। और भारतीय जनता पार्टी के हम लोग जितने कार्यकर्ता हैं, सभी हम लोग दुखी हैं और हम लोग यही कामना करेंगे कि इनका आत्मा को और ये जहाँ भी रहें खुश रहें, सुखी रहें और इनका जो दिखाया हुआ जो रास्ता है, इनका जो लक्ष्य था, उसको पूरा करने का हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे। सुषमा जी आज हमारे बीच नहीं रही, क्या करेंगे सर? ये अविश्वसनीय है। आदरणीय सुषमा स्वराज जी हम लोगों के बीच में नहीं, ये शब्द मन मानने के लिए राजी नहीं है। केवल उस दल की और देश की नेत्री नहीं थी, एक बड़ी बहन थी, एक अभिभावक थी, हम लोगों की मातृतुल्य थी। निजी जिंदगी से लेकर सामाजिक जीवन तक और देश की सरोकार में हम सभी को उनकी मार्गदर्शन की अभाव रहेगी। मैं ईश्वर की सामने प्रार्थना करता हूं, ईश्वर दीदी को अपने ही पास रखे और उनके परिवार को इस संकट के क्षण में और शक्ति दे, यही प्रभु के पास और ईश्वर के पास प्रार्थना करता हूं। सर बहुत कुछ मार्गदर्शन भी उनसे मिलता रहता होगा, कोई ऐसी बात जो आपको आज याद आ रही हो? देखिए, ऐसे तो स्मृति अनेक है। पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में देने की कार्यक्रम शुरू किया गया और आज वो लगभग 8 करोड़ की ओर जा रहा है। उस कार्यक्रम की एक बहुत बड़ी प्रवक्ता और समर्थक आदरणीय सुषमा स्वराज जी रही है। उन्होंने गीत उसके लिए रचा था खुद स्वयं, और मेरे को मालूम है जहां भी वो जाती थी, अपने चुनाव क्षेत्र में हो, जब पहली बार हमने कैबिनेट में इस सारे विषय में उनको रखा, विषय स्कीम के बारे में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में रखा, उसकी दूसरे कैबिनेट में उसके क्या क्या सुधार होनी चाहिए, उसको व्यक्तिगत रूप में विदिशा में क्रियान्वयन करके उस अनुभव से उन्होंने हमको समझाया था कि ये 2-3 चीज, रिफिलिंग कैसे होगी, सेफ्टी के बारे में कैसे ध्यान दिया जाएगा, सुरक्षा के बारे में कैसे ध्यान दिया जाएगा, ऐसे छोटी छोटी चीज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में उन्होंने हमको हाथ पकड़ के सिखाया था और मदद किया था। और उन्होंने इनके बारे में हम क्या कहें, अनेक अनुभव है।